Okay, thank you so much, Dr. Amir. And we have officially started recording. Those who have joined later, I welcome you all once again. We haven't started anything yet, and I'm going to start it right now. So I'm going to be the speaker of today. I am going to teach you all the basics, all the basic terminologies that we use in the systemic reviews and the meta-analysis. I guess uh, knowing the basics is very important because people think that it's a very complicated thing, but when you actually um, get to the meaning of it, turns out to be a very simple thing. It turns out to be like actually a very simple thing. So I'm going to share the screen now. Dr. Ataur Rahman, can you kindly confirm if you can see my screen? Yes, we can see it. Okay. So I'm going to show. So can you see the slides? Yes. Okay. Okay, everyone. So over today's lecture is on introduction to systemic reviews and meta-analysis. I'm going to let you know everything about the basics of these research. We are not going to go to the very complicated stuff right now because that it's like we have subsequent session for that. So for the basics, what you need to know, I will discuss all of them today. Okay. So first of all, we are starting with the mean, like we all have felt lost doing the meta-analysis, like, oh, what is this, like what is a meta-analysis? And then at one point we also feel like is it's like some kind of a mountain you cannot pass, but like it's not, like Dr. Amr said, it's not that complicated. So we are going to learn it and we're going to do it together. Okay. So the first thing first, K, what are the different like studies or different researches that are basically available? I think that's very important for all of you to know. Like we start with the like the weakest to the strongest. Okay. So the weakest one is the case reports, opinion papers, and the letters. They are the like weakest kind of the researches. Then we have animal trials. Then we have the cross-sectional studies. Cross-sectional studies, I think we have most of the students like among us, like these are from the fourth year or like from the final year or like someone third year. So the community departments, the community departments, they let us do these cross-sectional studies. I think we all have like done it, and we haven't paid much of the attention. So then that is followed by the case controls, then cohorts, then randomized control trials. Then we have the superior of them all, that is meta-analysis and systemic reviews, and that is even overtaken by the network meta-analysis right now, which basically is right now the most complicated thing, and everyone is trying to do it. But we are going to, inshallah, we are going to make you learn that part too. So right now we are going to stop stay with the basics, that is the meta-analysis and the systemic reviews. So so systemic reviews and meta-analysis, they look a lot like each other. Okay, so people like confuse them a lot, like what is a systemic review, what is a meta-analysis? So there's a there's a major difference between them, and that is this thing. Like the table you can see right here is the basic difference between a systemic review and a meta-analysis, and that is this thing called forest plot. I think you might all have like heard this term somewhere. Okay, what is a forest plot? People have used this fancy term, the forest plot. Oh, what is a forest plot? So this is a forest plot that basically differentiates between a systemic review and a meta-analysis. And what is this forest plot? It's basically give you the like numericals. Everything is in numbers, so you know the exact ratio, exact thing. Okay, oh, what is going on? Okay. So now back to this. Ki systemic review can be done alone. Like you should know that systemic review you can do it alone, but a meta-analysis cannot be done without a systemic review. Okay. So that is that. This is a forest plot. Okay. This is like for the later, we're going to like explain it all in the subsequent sessions, case में क्या क्या include होता है, क्या होता है. Forest plot इसको इस वजह से कहते हैं कि अगर आप let's suppose you are flying in a plane. Okay. So you are जो है ना flying across a forest and you are like looking down. तो आपको हर एक जो ट्री की टिप होती है जो नजर आती है, ठीक है, दैट दिस इज जो आपको वो शो कर रहा है ऊपर से. तो दैट इज बेसिकली अ फॉरेस्ट प्लॉट. और इसके जो कुछ ये कंपोनेंट्स होते हैं, दिस ऑल थिंग और रेशियो, ये जो जितना भी सब कुछ है, दीज आर गोइंग टू बी एक्सप्लेन. जस्ट नो दैट दिस इज अ forest plot. This is only present in a meta analysis. This is not a part of systemic review. The main difference. Okay. Next, I'm going to like tell you about different type of reviews are there. There's a narrative reviews. I think अगर किसी ने basic level की research की हुई है, so you will all have know कि narrative review क्या होता है. Systemic review obviously takes the priority here. Then we have scoping reviews, and then we have
umbrella reviews. Okay. उसके बाद स्टेप्स फॉर द व्हाट आर द स्टेप्स फॉर द मेटा एंड सिस्टमिक रिव्यू. ठीक है, अब ये सारे मैंने इकट्ठे करके लिखे हैं, बट सिस्टमिक रिव्यू का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मेटा का ऑलमोस्ट सेम होता है, बस एनालिसिस वाला पार्ट डिफरेंट होता है. ओके, सो सबसे पहले आपने बनाना होता है, ऑब्वियसली यू हैव टू फॉर्मुलेट अ रिसर्च क्वेश्चन. ओके, then you have to run the search. You have like formulated a question. I'm going to like make you learn how you basically develop that question, but you then run the search. Okay, then when you run the search, then you obviously screen the articles. What exactly do you need in your research? That is called the screening. Then you extract the data, then you run the analysis. Okay, so this analysis part, this is a part of a meta-analysis. This is not a part of a systemic review. You have to extract the data in a systemic review, yes, but you don't run an analysis in a systemic review. You only learn the analysis in a meta-analysis. Okay, then you write this manuscript, then you submit it to the journal, and then you obviously pray for the acceptance part, because we know how long it takes nowadays to accept whatever the journals do right now. Okay, so as I told you, okay, I'm going to help you to how you basically, oh, never mind, how you basically formulate a research topic. Okay, so first of all is, what is your area of interest. Okay, it could be anything. It could be neurology, it could be cardiology, it could be dermatology, it could be anything. And then you are going to select a disease. For example, neurology may we take is we are very interested in Parkinson. Okay, so we'll take the Parkinson. And we are doing the let's suppose in the cardiology we are doing the hypertrophic cardiomyopathy. You are interested in that, so that is will be a disease. Then you will go to the Google. You will write ki what are the treatment options that are available for the disease, and what are the recent drugs that are basically introduced, like recent पे आपने फोकस करना है, बिकॉज जो पहले पुरानी ड्रग्स होती हैं चलती हुई आ रही होती हैं उन पे बहुत सारा काम हो चुका होता है. ठीक है, उस पे इतना गौर करने की जरूरत मतलब इतनी सर्चेज होती हैं कि फिर आपके पास जगह नहीं होती. मैं बताऊंगी बाद में क्यों. Then you basically read up on the available treatments that are there. Then आप एक particular treatment आप उसके लिए करते हैं, that is you want to discuss, you want to run your search on. Then you basically formulate your research question. Okay, what are you going to find out about that drug, about that topic, about like any adverse effect or what is going on in that. ठीक है. Okay, so I'm going to show you step by step how we do it. Okay, so पहला जो है I will like let's make a topic. The first I've chosen the areas in neurology. I have chosen neurology because this was the first thing I worked on. I started my research journey with the neurology. I was doing the researches on the neurology की जितनी भी drugs होती हैं. ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या कहा था कि पहले you have to area of your interest. What is our area of interest right now? Neurology. In your case cardiology, in someone else's case dermatology. ठीक है, उसके बाद न्यूरोलॉजी के बाद सेकेंड आपने कर लिया व्हाट इज योर डिजीज. मैंने चूज कर ली मिग्रेन. यू कैन चूज एनी डिजीज दैट यू वांट. यू कैन इवन गूगल पे जाके यू कैन इवन सर्च के अच्छा बता डिफरेंट डिजीजेज अबाउट कार्डियोलॉजी की क्या डिजीजेज है, एंड देन यू कैन चूज एनीथिंग. ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होता है कि ट्रीटमेंट क्या होता है. अब हम क्या करेंगे कि ओके डिजीज हम यहाँ पर टाइप करेंगे कि जो मिग्रेन की ट्रीटमेंट्स क्या अवेलेबल हैं. ठीक है, मिग्रेन की ट्रीटमेंट में देयर आर सर्टेन अबॉर्टिव थेरेपीज होती हैं, एंड ये आपको सारी नज़र आ गई हैं. ठीक है, अब इसमें से ये है CGRP, कैल्सिटोनिन रिलेटेड पेप्टाइड के एंटागनिस्ट हो गए. ठीक है, अब मिग्रेन की ट्रीटमेंट्स में ये जितनी भी हैं ये सारी हैं. ठीक है, यू कैन चूज़ एनी ऑफ देम. ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो सबसे पहले जो रीसेंट है, लेट्स सपोज so we have CGRP के treatments हैं, and then we have nasal sprays हैं. Okay, so we have new delivery methods में orally भी हैं और nasal भी हैं. अब now this catches my eye कि oh like there is something जो कि nasally भी दिया जा सकता है for migraine. How is that even possible? Migraine के लिए आप जो है वो एक nasal spray दे रहे हैं. So that is known as a Zavegepant nasal spray provide a rapid relief from the acute migraine attacks. Okay, this catch my eye, and then मैंने क्या लिखा उसके ऊपर कि ट्रीटमेंट में मैं अपनी CGRP के एंटागनिस्ट जिसमें मैंने किया ज़ेवेजेपेंट एंड अटेजेपेंट. ठीक है, तो ये मैंने
यहाँ पर देख लिया कि अच्छा ज़ेविजिपेंट है, जो हम इंट्रानीजली देते हैं, दैट इज़ लाइक ओह दैट्स डिफरेंट थिंग। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस, ठीक है। दिस बिलोंग टू द क्लास ऑफ सीजीआरपी टारगेटेड थेरेपीज। ये हमने यहाँ पे मैंने आपको शो कर दिया कि सीजीआरपी के एंटागनिस्ट होते हैं, एटोजिपेंट है और ज़ेविजिपेंट है, ठीक है। अब हमने एरिया देख लिया, हमने डिजीज़ अपनी चूज़ कर ली, हमने ट्रीटमेंट अपना देख लिया। अब हम जाते हैं उसके ऊपर कि अब हमने टोजिपेंट के ज़ेविजिपेंट में से क्या देखना है। अब आई वाज अट्रैक्टेड टू द फैक्ट दैट कि ओ ज़ेविजिपेंट आप इंट्रानेज़ली देते हैं, ठीक है। इंट्रानेज़ली कोई ड्रग, इट मस्ट बी लाइक अ डिफरेंट थिंग, ओके। तो देन यू सेलेक्ट अ ट्रीटमेंट, लाइक इन माय केस आई लाइक सेलेक्टेड ज़ेविजिपेंट, ठीक है। और ज़ेविजिपेंट जब हमने सेलेक्ट कर ली, सो ज़ेविजिपेंट हमने सेलेक्ट कर ली एंड देन वी आर गोइंग टू बेसिकली फॉर्म अवर रिसर्च क्वेश्चन। एंड अगर आप कोई ड्रग लेते हैं, सो यू ऑलवेज चेक उसकी सेफ्टी एंड एफिकेसी। ज़रूरी नहीं है ऑलवेज, मतलब जैसे कि सेफ्टी एंड एफिकेसी आप यूजुअली देखते हैं, लेकिन आप सम केसेस में जो है वो फार्माकोकाइनेटिक्स भी उसकी जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। सो अब ये हमारा एक टॉपिक बन गया। वो ओवर एरिया वाज न्यूरोलॉजी, ओवर डिजीज वाज मिग्रेन, ओवर ट्रीटमेंट वाज CGRP antagonist. These are Zivagipin. We have selected a treatment that is Zivagipin, and we have formed a question. Okay, we are going to find out safety and efficacy of Zivagipin for acute migraine. Okay, so now I'm going to take you with me, and we are going to learn it visually. हर चीज I'm going to close this अभी और okay, let me see what we have here. Okay, अच्छा यहाँ पे मैं आपको मैं स्टार्ट से दिखा देती हूँ। ओके, सो सबसे पहले आप पबमेड पे जाते हैं। पबमेड का आई थिंक सबको आइडिया होगा, ठीक है। और पबमेड पे जाके मैं सिर्फ पे लिखूंगी। अब मुझे कुछ नहीं पता कि ज़ेविजिपिन क्या होती है, मतलब इतना चलो पता है कि आपने अभी सर्च कर लिया ज़ेविजिपिन क्या होती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि काम किस तरीके से करती है, इस पे काम हुआ है कि नहीं हुआ, एंड एवरीथिंग, ठीक है। यू आर गोइंग टू राइट ज़ेवेजी ज़ेवेजिपिन, ओके ओके। सॉरी, ये तो कि ड्रग का नेम इज़ very important, sorry for that. I'm going to copy this. ओके, अभी हमारे पास जो है इधर आ गया, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर द अदर सब दैट बेसिकली हैपेंड। ओके, सो अभी हमारे पास ये इधर फ़िल्टर आ गया और इस फ़िल्टर में अभी हमने कुछ भी फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ, ठीक है। अभी हमारे पास ये पबमेड का हमने सिर्फ ड्रग का नाम लिखा है और हमने देखा है कि हमारे पास 57 रिजल्ट्स आए हैं 2006 से लेकर ऑल द वे टिल 2025 तक, ठीक है, 2025 तक। और अभी हमने इस पे कोई भी जो है वो नहीं लगाए हुए और देयर आर लाइक 57 आर्टिकल्स जो आपने यहाँ पे रिट्रीव किए हैं। अब हम इस पर लगाएंगे अपना पहला फ़िल्टर, दैट विल बी अ सिस्टमिक रिव्यू, ठीक है। वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन सिस्टमिक रिव्यू राइट नाउ। अब आपने देखना है कि सिस्टमिक रिव्यू इस पर कब कब हुए हैं तो किस चीज़ पर हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, और देखना है कि कितना रीसेंट हुआ है। बिकॉज अगर बहुत रीसेंट हुआ होता है तो आप उसके ऊपर सिस्टमिक रिव्यू फिर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप अभी स्टार्ट करें और पिछले महीने एक उस पर जो है वो आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो आप उसके ऊपर सिस्टमिक रिव्यू फिर इतना जल्दी नहीं कर सकते अगर आपके पास न्यू स्टडीज़ नहीं आई होती। अब हम देखते हैं कि 2022 में एक हुआ था सिस्टमिक रिव्यू, 2023 में 3 हुए थे, 2024 में 2 और 2025 में 1। एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस 2025 वन, ठीक है। और ये इसने बेसिकली खोल दिया है द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ ज़ेविजिपिन नेज़ल इनहेलेशन वर्सेस द ओरल CGRP के एंटागनिस्ट इन द एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ मिग्रेन, अ सिस्टमिक रिव्यू। एंड व्हेन वाज इट पब्लिश्ड? 2025 मार्च, ठीक है, मार्च, लाइक लिटरली पास्ट लाइक लास्ट मंथ में ये पब्लिश हुआ है। अब ऑब्वियसली अब उस टाइम पर, जिस टाइम पे मैंने किया था उस टाइम पर तो क्या नाम है, इसके ऊपर इतना काम नहीं हुआ था। सो आई वॉज एबल टू डू इट एंड वी पब्लिश इट। अब मैं आपको सिर्फ ये बेसिक बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर मैंने एक चीज़ मेंशन की थी, वो ये था कि ऑलवेज चेक फॉर प्रीवियस सिस्टमिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस, दिस इज इम्पॉर्टेंट। आप इतनी एनर्जी वेस्ट कर लें और आप देखें कि ओ आप द सेम थिंग समवन हैज़ पब्लिश कहीं और पे, तो ऑब्वियसली आपका फिर
वो नहीं पब्लिश हो पाता। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। फ़िल्टर आपने सिस्टेमिक रिव्यू का लगाना है, ठीक है, और कोई भी फ़िल्टर फ़िलहाल नहीं लगाना आपने। और now I'm going to show you okay, this was the topic safety and efficacy of zavegepant in treating migraine, a systemic review. Now I am going to show you systemic review का क्या क्या पार्ट्स होते हैं विजुअली यहाँ से डायरेक्ट देखते हुए। ठीक है, सबसे पहले आपका आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट आपकी पूरी जो रिसर्च होती है उसका एक समरी होती है। ठीक है, और जो है कोई भी बंदा आपके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के व्हाट दे हैव एक्चुअली डन हियर। ठीक है, उसके बाद पहला पार्ट आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन और उसका बैकग्राउंड आता है। ठीक है, अब मैं इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताती हूँ कि इंट्रोडक्शन हम बेसिकली कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन इट इज़ बेसिकली बेसिकली जो फनल होती है दैट इज अपसाइड डाउन। उसका जो बेस होती है दैट इज अ ब्रॉडर वन एंड देन टुवर्ड्स द एंड इट बिकम्स अ मोर स्पेसिफिक वन। ठीक है, सो ये इंट्रोडक्शन भी फ्रॉम जनरल टुवर्ड द स्पेसिफिक। अब डिपेंड करता है कि आप कोई डिजीज को कर रहे हैं या फिर आप किसी ड्रग को कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर इफ यू आर वर्किंग ऑन अ डिजीज यू हैव टू डिफाइन इट। यू हैव टू डिफाइन द लाइक उसकी कितनी अक्रेंस है नाउ डेज, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी, उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होती है और उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है। लेकिन अगर आप ड्रग को कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स दैट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। ड्रग में आपने ये करना होता है कि ड्रग की क्लास क्या है। ठीक है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इट्स एक्शन, उसकी क्लिनिकल यूजेस कहाँ पर हैं और व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो आपने बेसिकली इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें बतानी होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारा मिग्रेन था, अब मिग्रेन के बाद एज आई सेड के मिग्रेन हमारी एक डिजीज थी। ठीक है, तो पहले हमने उसकी डेफिनेशन बताएंगे। ऑब्वियसली डेफिनेशन मैंने यहाँ पर बता दी। मिग्रेन इज अ प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर मोस्ट ऑफन characterized बाय यूनिलैटरल हेडेक विदाउट और विद ऑरा। दैट इज योर डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी जो है उसको हमने बता दिया, उसको हमने एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद कॉमन एमरजेंसी है इन द हॉस्पिटल विजिट्स के अंदर देयर आर मेजर सब टाइप्स हैं। मिग्रेन विद ऑरा होता है, विदाउट ऑरा होता है। सो वी हैव लाइक टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द मिग्रेन के बारे में। ठीक है, उसके बाद उसकी पैथोफिजियोलॉजी है दैट इज एक्टिवेशन ऑफ ट्राइजेमिनल एक्टिवेटिंग सिस्टम एंड द पेन रिड्यूसिंग लाइक किसकी वजह से होता है ऑल। एंड देन वी हैव पैथोजेनेसिस that is migraine headache including substance p neurokinin। okay, and then तो ये हमने बेसिकली शुरू में उसका मिग्रेन की डेफिनेशन से स्टार्ट किया एंड देन वी हैव पैथोफिजियोलॉजी, उसका एपिडेमियोलॉजी, उसको क्या कॉज करता है हमने सब एक्सप्लेन कर दिया। एंड देन वी हैव फाइनली केम डाउन टू उसके थेरेप्यूटिक एजेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले ऑब्वियसली ट्रिप्टन से स्टार्ट करते हैं। एनसर्स होते हैं एंटीएमेटिक्स, एसिटामिनोफेन, ट्रिप्टन, सोमाट्रिप्टन। ठीक है, बिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्पेशली फॉर द पेशेंट विद एलोडाइनिया। सो नाउ द सीजीआरपी वाज द रीसेंट वन, पहली चीज। और दूसरी चीज के that is given intranasally and these are the antagonists provide a promising therapeutic action for the patient with migraine and they have shown efficacy in various clinical trials। ठीक है, आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आपने उसको बता दिया एंड देन एंड पे आप बताएंगे कि आप किस चीज़ पर अभी करने वाले हैं और क्या ऐसी चीज़ है जो आई कैचिंग चीज़ थी जो आपको लगा कि यू शुड मेंशन इट, यू शुड वर्क ऑन इट। ओके ओके, सो उसके बाद जैसे मैंने बताया डिजीज़ थी, डिजीज़ के बारे में मैंने सब चीज़ें आपको दिखाई कि हमने डेफिनेशन दी, फिर हमने एपिडेमियोलॉजी उसकी बताई, फिर हमने पैथोफिजियोलॉजी बताई, उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं और फिर हमने एंड पे उसकी ड्रग्स बता दी या उसके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं। और अगर ड्रग को आप बेसिकली आप किसी डायरेक्टली ड्रग पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर ड्रग के लिए आपका इंट्रोडक्शन इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट बट जस्ट कीप इट फ्रॉम जनरल टुवर्ड्स द स्पेसिफिक। ओके, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रैशनल। रैशनल आपने बताना होता है कि वाई आर यू इवन डूइंग दिस रिसर्च। ठीक है, तो ये आपके पास रैशनल है। वी कनेक्टेड सिस्टमिक रिव्यू आपने जो है वो किया है K, which is to determine the safety and efficacy of zavegepant, which is relatively a new CGRP antagonist and has an advantage of intranasal administration. ये आप देख रहे हैं, has an advantage of intranasal administration. That was a eye-catching thing, and I think we should like हमें काम करना चाहिए। ठीक है, तो that was introduction part. I hope आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, आपके questions है that I'm going to deal them in the end। ठीक है, अब हम जाते हैं अगले पार्ट पे। अगले पार्ट पे आपका होता है मटेरियल्स एंड मेथड्स होते हैं। राइट नाउ वी आर डूइंग द सिस्टमिक रिव्यू। ठीक है, अभी हमने मेटा एनालिसिस स्टार्ट नहीं किया, सिस्टमिक रिव्यू अब हम कर रहे हैं और अब हम मटेरियल मेथड्स पे आ गए हैं। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना होता है, दिस इज अ टेक्निकल पार्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा पार्ट बेसिकली इंट्रोडक्शन तो ईजी होता है। सर्च स्ट्रैटेजी आप बेसिकली रन करते हैं। सर्च स्ट्रैटेजी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। अच्छा, सेकंड आपका पार्ट जो होगा वो होगा मेथडोलॉजी का। ठीक है, टेक्निकल पार्ट होता है, उसमें हम
अपनी मेथोडोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं कि आपने ये बेसिकली किया किस तरीके से। सबसे पहले कि विच डाटा बेसिस दैट वी यूज, डाटा बेसिस क्या होते हैं, वो सारी जगह जहाँ पे आपने अपनी सर्च रन की थी अपने टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें सबसे पहले आता है आपका पबमेड आता है, ठीक है। पबमेड पे आप अपनी इसका फॉर्म कुछ ऐसे दिखता है, पबमेड पे आप अपनी सर्चेज रन करते हैं। पबमेड नहीं है तो आपका जो है वो है कॉकरेन, कॉकरेन पे आप अपनी सर्चेज रन करते हैं। कॉकरेन नहीं है तो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, और क्लिनिकल ट्रायल्स के अलावा आपके एमबेस भी होते हैं। एमबेस की मेरे पास अभी एक्सेस नहीं है, लेकिन ये है कि आपको जो इन 4 जगहों मैंने जो एक्सप्लेन किए, जो कि पबमेड है, कॉकरेन है, एमबेस है और क्लिनिकल ट्रायल्स है, इन सब जगहों पर आप जो है वो सर्चेज रन कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है व्हेन वाज द सर्च कंडक्टेड, ठीक है। ये आपने बताना होता है कि आपने सर्च अपनी बेसिकली रन कब की। ये देखिए यहाँ पे हमने बता दिया फ्रॉम द इंसेप्शन टिल अप्रैल 22 2023। आपने बताना होता है आपने अप्रैल में की है, जून में की है, अगस्त में की है, जब भी आपने की है ये आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे देखें, आप सबसे पहले अपने डाटा बेसिस बताने होते हैं। पबमेड है, एमबेस है, कॉकरेन है, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, ठीक है। ये आपके 4 डाटा बेसिस होते हैं। और आपके जो जो आपने आगे बता दी कि आपकी डेट क्या है, अप्रैल 22 2023 से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फिर आपने जो है वो टाइम फ़िल्टर्स मैंने आपको बता दिया था पीछे कि जो वो है, आपने किस तरीके से देखना होता है कि आपका सिस्टमिक रिव्यू पहले कंडक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। एंड देन दिस थिंग, प्रिज़्मा। प्रिज़्मा लोगों को बहुत करता है कि ओह व्हाट इज़ अ प्रिज़्मा? प्रिज़्मा एक्चुअली क्या होता है? प्रिज़्मा इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट लाइक माय फेवरेट थिंग। आई जिन लोगों को सॉरी टू से इफ सम थिंग दैट्स ऑफेंसिव, ओसीडी होता है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी कि आपने ये चीज़ें बता देनी होती है, अपना डाटाबेस यूज़ किया, आपने अपनी डेट बता दी, ठीक है, और आपने अपना सारा सर्च रन किया। अब आपको मैं बताती हूँ कि आपने प्रिज़्मा, दिस इज़ हम जो होता है कि फ़िल्टर्स जो अप्लाई करते हैं, जो भी होता है, हम प्रेफर्ड रिपोर्टिंग आइटम्स फॉर सिस्टमिक रिव्यूज़ एंड मेटा एनालिसिस गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस हैं, ये आपने हमेशा साइट करना होता है। ये देखिए आपने लिखा होगा फिगर 1, ये साइट करना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसको प्रिज़्मा प्रिज़्मा चार्ट कहते हैं, और प्रिज़्मा चार्ट बेसिकली इज़ अ वेरी थिंग जो कि आपको चीज़ें बहुत आपके लिए आसान कर देती है। अब प्रिज़्मा में बेसिकली क्या होता है कि प्रिज़्मा इज़ गोइंग टू नैरो डाउन इट फॉर यू, कि अगर आपने स्टार्ट किया था, जैसे कि अब मैं कहती हूँ कि रिकॉर्ड्स आपने आइडेंटिफाई किए 107 पबमेड से, 16 कॉकरेन से, क्लिनिकल ट्रायल से 4 आ गए। अब ये कुल मिला के 127 बनते हैं। 127 पर एक इंडिविजुअल बंदे का बैठ के हर एक को रन करना इज़ नॉट लाइक पॉसिबल। अगर आप कोई सुपर ह्यूमन चाहिए होगा हमें उसके लिए, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। अब हमने डुप्लीकेट रिकॉर्ड उसमें रिमूव कर दिए, ठीक है। 14 हमने इधर ही रिमूव कर दिए, वो हम स्क्रीनिंग के थ्रू करते हैं, वो आपका सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में। अभी आपके सिर्फ बेसिक्स है, अभी मैं आपको सिर्फ प्रिज्मा के कुछ पार्ट्स बता रही हूँ, ठीक है। आपने डुप्लीकेट्स हटा दिए, 127 में से 113 रह गए। अब आपने 13 रह गए, आपने रिकॉर्ड्स की दोबारा से स्क्रीनिंग की तो जो आपके प्राइमरी स्क्रीनिंग थे, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं थे, आपने वो हटा दिए, 95 रह गए। 95 के बाद फिर आपके पास आ गए फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स। अब फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स आपके पास 18 है। नाउ दैट्स अ ह्यूज लाइक 2, ठीक है। अब 18 को भी आपने बैठ के एक-एक को देखना होता है, और देखना होता है कि आपके जो जिस चीज़ के साथ आप जाना चाह रहे हो, वो एक्चुअली उन आर्टिकल्स में है भी या नहीं है। एंड देन उनको आपने इंडिविजुअली स्क्रीन करना होता है, ठीक है। और फिर 18 के बाद इवेंचुअली आपके पास 6 आ जाते हैं। लाइक नाउ दैट्स अ रिलीफ, ठीक है, कि ओह वी स्टार्टेड फ्रॉम लाइक 127 एंड वी एंडेड एट 6। चलो 6 पे करना तो हो ही सकता है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द सर्च स्ट्रैटेजी, मटेरियल एंड मेथड्स, ठीक है। आपने सर्च स्ट्रैटेजी बतानी होती है, आपने किस तरह कहाँ से किया, कहाँ से लिया, और आपने सिस्टम वाइज बताना होता है कि एक बंदा देखे कि अच्छा आपने इतने आर्टिकल्स रिट्रीव किए थे तो एंड पे कितने रह गए जिस पे आपने एनालिसिस रन किया, इंक्लूडेड दिस टर्म इंक्लूडेड। अच्छा, आपने परेशान नहीं होना कि आपने बैठ के खुद बनाना होता है, खुद बैठ के आपने नहीं बनाना होता, ठीक है। आपको जो है ना, आप जाते हैं इसके ऊपर और आप कहते हैं कि प्रिज्मा चार्ट डाउनलोड, और ये आपको जो है ना, ये सामने आपका आ जाता है, ठीक है। आप इसको ओपन करेंगे और ये आपको वर्ड में पूरा बता देगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ठीक है। ये वर्ड में आपका डाउनलोड हो जाता है। आपने सिर्फ अपने यहाँ पर नंबर्स एंटर करने होते हैं, ठीक है, और ये आपका यहाँ ही से बन जाता है। और ये आपका पीडीएफ टू वर्ड में भी आप इसको आपने अलग से भेजना होता है अपने रिसर्च के साथ, तो ये फिर आपका दैट्स अ सेपरेट थिंग, ठीक है। अच्छा, तो ये है कि खुद बैठ के आपने ये बॉक्सेस नहीं बनाने होते, ये आपका बना बनाया आता है, और आपने जस्ट अपने न्यूमेरिकल्स यहाँ पे एंटर करने हैं, रिपीट नॉट रिट्रीव्ड, और ये एडिटेबल भी है, सो दैट्स लाइक अ गुड थिंग, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको प्रिज्मा के बारे में बता दिया।
अच्छा, प्रिज़्मा आपने साइट भी करना है, ये भी आपको पता चल गया। अब आपके पास होते हैं कि अब आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के यही है कि आपने कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो एलिजिबल थे, जो कि आपके क्वेश्चन को आंसर कर रहे थे कि ज़िविजिपेंट अगर लेट्स सपोज़ है, तो वो कितनी सेफ्टी है उसकी, कितनी एफिकेशियस है, वो वाले आर्टिकल्स जो उसको बता रहे थे, ठीक है? और आपने उनको फिर इंक्लूड कर लिया। यहाँ पे हमने जितने भी जो थे क्रॉस सेक्शनल थे, केस कंट्रोल्स, कोहॉर्ट्स जो थे वो आपने जो कि नहीं दे रहे थे, तो आपने इसको एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें आपने जो है वो बतानी होती हैं। फिर आपने स्टडी सिलेक्शन के बारे में बताना होता है, ठीक है? कि आप कौन से ऑथर्स जो हैं वो उन्होंने आपके जैसे मेथोडोलॉजी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि आपने कौन सी स्टडीज़ इंक्लूड की थी, कौन सी एक्सक्लूड की थी और अगर कोई एक्सक्लूड की थी तो वो क्यों की थी, ठीक है? तो ये आपने अपने मेथोडोलॉजी में बताना होता है। थर्ड चीज़ आपकी होती है कि स्टडी सिलेक्शन ऑन बायस, कि आपने हु परफॉर्म द स्क्रीनिंग, ठीक है? जैसे कि डॉक्टर आर्मन ने शुरू में कहा था कि इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ टीम वर्क, अकेले आप ये सारा काम नहीं कर सकते। सो आपने बेसिकली डिवाइड किया हुआ होता है काम, कुछ लोग स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, कुछ लोग एनालिसिस वाला पार्ट कर रहे होते हैं। सो यू हैव टू मेंशन कि किसने क्या काम किया है और सबको क्रेडिट मिलना चाहिए आई गेस। सो हु परफॉर्म द स्क्रीनिंग, ठीक है? और आपने इसमें ये बताना होता है कि स्क्रीनिंग किसने परफॉर्म की थी, जैसे हमने कि 2 ऑथर्स एचएस एंड एफएस, टाइटल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑल ऑफ द आर्टिकल्स, ठीक है? और फिर आपने बताना होता है कि किसने डाटा एक्सट्रैक्ट किया और किसने आपने बायस चेक कैसे किया। बायस बेसिकली क्या होता है कि ओके सो ठीक है, डाटा क्वालिटी बायस जो होता है आप चेक करते हैं। डाटा एक्सट्रैक्शन आपने मैंने बता दिया, क्वालिटी असेसमेंट होती है कि आपने जो अपनी आर्टिकल सेलेक्ट किए वो इतने अच्छे थे भी कि आपने अपने उसको उसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक है? सो क्वालिटी असेसमेंट करनी होती है और क्वालिटी असेसमेंट आप जो है वो बेसिकली डिफरेंट तरीकों से करते हैं। यहाँ पर हमने जो है वो किया हुआ है ऑनलाइन, जो आपके पास रिस्क ऑफ बायस का असेसमेंट होती है, ठीक है? ये उस तरीके से बनता है और उसके बाद इससे पहले ये वाली चीज़, इफ दिस समथिंग दैट इंट्रूव्स यू। अच्छा, अब ये चीज़ जो है बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्वियसली हर स्टडी सेम नहीं होती, हर स्टडी डिफरेंट होती है, उन्होंने डिफरेंट पॉपुलेशन ली होगी, डिफरेंट जो है वो लोग लिए होंगे। सो सबके बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट स्टडीज जो आप इंक्लूड करते हैं उनकी डिफरेंट होती है, तो आपने उसका एक बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक का टेबल बनाना होता है। इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है ये, आप खुद देख सकते होंगे आपने कौन से जो है वो आपने कौन सी स्टडीज़ ली, ठीक है? किस ईयर में हुई थी, पार्टिसिपेंट फ्लो क्या था, मीन एज, ये हर स्टडी के अंदर बना हुआ भी होता है, आपको सामने नज़र आ जाता है, आपने जस्ट अपने उसका कंबाइन करके एक बनाना होता है, ठीक है? जैसे इसमें हमने ये बनाया हुआ है। आपने रिस्क ऑफ बायस कर लिया, रिस्क ऑफ बायस हम आपको सिखाएँगे, डोंट वरी अबाउट इट, रिस्क ऑफ बायस हम आपको करना सिखाएँगे बाद में। अभी आपके लिए देख लें, रिस्क ऑफ बायस का बेसिकली मकसद ये होता है, कौन सी ऐसी स्टडी है दैट इज़ गोइंग टू बेसिकली कॉज़ यू ट्रबल एंड कौन सी ऐसी स्टडी है कि वो इतनी अच्छी थी कि उसने आपके रिज़ल्ट्स अच्छे बना दिए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम आउटकम्स डिफाइन करते हैं, आपके आउटकम्स क्या थे? हमारे केसेस में सेफ्टी थी, एफिकेसी थी। बेसिकली आपके आउटकम्स ये चीज़ होता है कि मैं कहती हूँ कि माइग्रेन था, ठीक है? आपने ज़ेविजिपेंट दी, माइग्रेन आपको था, ज़ेविजिपेंट आपने दी तो ज़ेविजिपेंट ने माइग्रेन कितना कम कर दिया? हाउ मैनी टाइम्स, क्या उसका पेन का फैक्टर जो है कितना कम हो गया? या अगर माइग्रेन के साथ आपको ऑरा था या आपको वॉमिटिंग हो रही थी, ठीक है? तो जो ज़ेविजिपेंट है उसने उसको कितना टाइम्स कम कर दिया। तो ये हम आउटकम्स में देखते हैं कि वो सेफ थी और वो कितनी एफिकेशियस थी, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं उसके रिज़ल्ट्स पे। रिज़ल्ट्स में यहाँ पे हमने फार्माकोकाइनेटिक्स डिटरमाइन की थी, ठीक है? हर उसमें ये ज़रूरी नहीं होती है और उसके अलावा हमने फिर इसकी एफिकेसी देख ली और फिर हमने उसकी ये सेफ्टी देख ली, ठीक है? ये अभी मैं आपको सिर्फ़ जनरली एक पूरा उसका ओवरव्यू दे रही हूँ। अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर जाएँगे। दैट इज़ द सिंपल बेसिक्स राइट नाउ। यू ठीक है? कि यू जस्ट हैव टू नो कि क्या-क्या होता है। अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि इसमें कोई भी फॉरेस्ट प्लॉट नहीं था। इसमें एक रिस्क ऑफ बायस का था, ठीक है? वो ये है। एक इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक का टेबल था, क्योंकि हर स्टडी सेम नहीं होगी और एक जो था इसमें ये प्रिज़्मा का फ्लो चार्ट था। जो कि आपको बताता है कि अच्छा आप फनलिंग के थ्रू आपने एंड पे कितने रिट्रीव किए। अच्छा, उसके बाद आपने जो है वो एफिकेसी, आपने ये हमारे रिजल्ट्स चल रहे हैं, सेफ्टी देख लिया आपने और ये आपने देख ली इसका डिस्कशन पार्ट। अब डिस्कशन आपने बेसिकली बताना होता है कि अगर आपने रिजल्ट्स जो है ना, अगर वो नंबर्स में बताए हैं, तो डिस्कशन आपकी वर्ड्स में होगी। डिस्कशन कोई बंदा है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के आपकी पूरी रिसर्च पढ़ेगा, ठीक है? दे कैन डायरेक्टली गो टू योर डिस्कशन, ओह! दे हैव डन दिस एंड दिस, ओके ग्रेट। दे हैव उनको सब पूरा आइडिया हो जाएगा कि क्या हुआ था एक्चुअली इस रिसर्च में।
डिस्कशन का एक पार्ट होता है कि आपने इसमें जो है रिजल्ट्स, ठीक है, मैं आपको मेटा एनालिसिस का भी पार्ट बताऊंगी। डिस्कशन में यू हैव टू समराइज योर रिजल्ट्स एंड यू हैव टू कंपेयर विद द स्टडीज दैट आर पब्लिश्ड ऑनलाइन। आपने देखना होता है कि इससे पहले अगर कोई स्टडी जो पब्लिश है दैट इज क्लोजेस्ट टू योर वन, यू हैव टू कंपेयर योर वन विद दैट। कि हमेशा ऐसा होगा कि उन्होंने जो इंक्लूड की होंगी आपने उससे एक ज़्यादा इंक्लूड की होगी, एंड देन यू हैव टू टेल अबाउट योर रिजल्ट्स कि आपके रिजल्ट्स उनसे किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किए हैं। ठीक है, कि अगर उसमें दो आपकी बहुत अच्छी सर्चेस थी और वो कहती है कि ज़ेविजेबन तो बड़ा अच्छा काम करती है, एक नहीं करती, लेकिन आपकी तीन बता रही है, देन यू हैव टू यू नो आपने उसको बताना होता है कि हमारी स्टडी उसके कंपैरिजन में, उसमें अगर ये ऐसा हुआ था तो हमारी स्टडी में ऐसा हुआ है, तो आपने उस तरीके से उसको कंपेयर करना होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये आपने बताया कि कंक्लूजन इज अ पार्ट, कंक्लूजन इज बेसिकली अगेन द समरी ऑफ ऑल ऑफ इट एंड देन यू हैव रेफरेंसेस। मैं आपको दोबारा से एक बार सिस्टेमिक रिव्यू का पूरा बता देती हूँ। सिस्टेमिक रिव्यू में इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, बहुत आसान सी चीज़ होती है। सबसे पहले आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, दैट इज़ योर होल समरी। इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन को मैंने आपको लिखना सिखा दिया, ठीक है, कि अगर डिजीज़ हो तो क्या होगा, ड्रग हो तो क्या होगा, रैशनैले आपने ज़रूर उसको मेंशन करना है। फिर हम आते हैं मटेरियल्स एंड मेथड पर, आपने सर्च स्ट्रैटेजी बतानी होती है अपनी, ठीक है, और फिर आपने उधर प्रिज्मा अपना फ्लो चार्ट दिखाना होता है कि आपने कितने आर्टिकल्स रिट्रीव करके कितने आपने अपने स्टडी में इंक्लूड किए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था कि क्यों इंक्लूड किए, क्यों एक्सक्लूड किए, स्टडी सिलेक्शन आपकी जो है वो किसने की थी, स्क्रीनिंग किसने की थी, डाटा एक्सट्रैक्शन किसने की थी, क्वालिटी असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर रिसर्च में होती है कि आपकी जो है आपने जो स्टडीज़ इंक्लूड की थी क्या वो आपकी ओवरऑल स्टडी को है आपको हेटेरोजेनिटी की तरफ तो नहीं लेके जा रही, या आपके रिजल्ट खराब तो नहीं कर रही। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं दिस वन एंड दिस वन, दिस इज लाइक द मीडियम थिंग एंड दिस वन इज लाइक के इस ये थोड़ा मसला कर सकती है, एंड द रेस्ट ऑफ देम दे आर लाइक ग्रीन, सो ये इतना मसला नहीं करेंगी। ठीक है, फिर आपके पास होते हैं आउटकम्स। आउटकम्स आपने बताने होते हैं कि आपके आउटकम्स क्या हैं। आप हमारे सेफ्टी एफिकेसी के थे, अभी आपके डिफरेंट हो सकते हैं। रिजल्ट्स आप बताते हैं, ठीक है, रिजल्ट्स आपने लिख लिए, और उसके बाद आपका जो है वो एंड पे आपके डिस्कशन वाला पार्ट होता है जिसमें कंपैरिजन आपने नहीं भूलना, कंपैरिजन आपने हमेशा करना है एक रीसेंट स्टडी के साथ, एंड देन देयर आर रेफरेंसेस। ठीक है, अब काइंडली कोई एक बंदा मुझे जो है ना ये कंफर्म कर दे कि अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही। एनीवन? आई होप समझ आ रही होगी। ओके, Yes, madam, we are understanding. ओके, ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलें, आपको अगर आई एम गोइंग टू टेक ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस इन द एंड, ठीक है, उसकी आपने वो नहीं करनी। यू कैन राइट योर क्वेश्चंस और मैं एंड पे आपके सारे क्वेश्चन आंसर कर दूंगी। अभी तक हमने जो है ना सारा सिस्टेमिक रिव्यू हमने कवर कर लिया। आई होप सिस्टेमिक रिव्यू आपको समझ आ गया होगा। बहुत ईजी चीज़ होती है, एज सच कोई भी इतनी चीज़ नहीं है कि आपको लगे कि पता नहीं ऐसा क्या है कि मेरे से नहीं हो सकता। सिस्टेमिक रिव्यू को अब हम करने लगे हैं यहाँ पर एंड। नाउ वी आर गोइंग टू गो टूवर्ड्स आपका हमारा जो आज हम जिसकी वजह से यहाँ पर हैं, दैट इज़ मेटा एनालिसिस। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मेटा एनालिसिस और सिस्टेमिक रिव्यूज कितने आपस में को रिलेट करते हैं या कितने होते हैं। पहले मैंने आपको यहाँ पीछे बताया था कि जो आपका मेटा एनालिसिस होता है ना, उसमें एक चीज़ होती है और वो होता है ये चीज़, फॉरेस्ट प्लॉट। मैंने आपको सिस्टेमिक रिव्यूज दिखाया, उसमें आपको फॉरेस्ट प्लॉट नज़र नहीं आया होगा, लेकिन मेटा एनालिसिस में फॉरेस्ट प्लॉट होता है। मेटा एनालिसिस बेसिकली ऐसी चीज़ है कि अगर मैं आपको एक बहुत लेमैन टर्म में बताऊँ ना, कि आप कहते हैं कि आप किसी के पास आप कोई शॉपिंग करने के लिए गए, ठीक है, और वो आपको कहता है कि अच्छा आप यू हैव टू लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू बाय पोटैटोज़, और आपने कहा है कि ओके आई एम गोइंग टू बाय हाफ केजी ऑफ पोटैटोज़। नाउ दैट हाफ केजी ना, जिसमें कोई पर्टिकुलर वर्ड या कोई टर्म या कोई नंबर मेंशन नहीं है, वो is your systemic review. But if that person says you are going to have 7 potatoes in the half kgs, that 7, the term 7, the numeric 7 is going to um, tell you कि that is the meta analysis part. Meta analysis आपको exact numbers में, numericals में ये बताता है कि यहाँ पर ये इस ड्रग की वजह से ये हो रहा है, ये ड्रग आपने दी तो इसकी वजह से इतना इफेक्ट आ रहा है। आपने 100 में से 100 लोगों को ड्रग दी, ज़ेविजेपिन दी, 60 लोगों को जो है वो उसमें आ रहा है, 40 को नहीं आ रहा।
ठीक है, तो ये आपको मेटा एनालिसिस जो होता है वो आपको बताता है। अब हम देखते हैं मेटा एनालिसिस के क्या पार्ट होते हैं। अगेन विल स्टार्ट विद द एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट आप देख लेंगे कि डिफरेंट है थोड़ा-सा, ठीक है? थोड़ा-सा डिफरेंट इसलिए बिकॉज़ ऑफ द रिजल्ट्स। नाउ अब आपको नज़र आ रहा होगा रिजल्ट्स में कितने नंबर्स यूज़ हुए हुए हैं। रिस्क रेशियो, कॉन्फिडेंस इंटरवल, आई स्क्वायर, ठीक है? ये जितना भी होता है ये हम आपको बाद में बताएँगे कि क्या चीज़ होता है, लेकिन अब इस पे फिर फ़ोकस करें कि यहाँ पे आपको कितने नंबर्स दिख रहे हैं। और अगर मैं पीछे जाऊँ, ये हमारे पास सिस्टेमिक रिव्यू वाला था, तो आपको इसमें इतने नंबर्स नहीं दिख रहे, ठीक है? तो आपको मेटा एनालिसिस बेसिकली एग्जैक्ट बताता है कि न्यूमेरिकल्स में कि ओ ये वाली चीज़ इतने परसेंट ऐसे हो रही है, और खासतौर पे हमारी पी वैल्यू, ठीक है? पी वैल्यू सिग्निफिकेंट होना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपका ये है, इंट्रोडक्शन है, मेथड्स हैं, रिजल्ट्स होते हैं, कंक्लूजन होता है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है। अब कुछ कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि अच्छा हम एब्स्ट्रैक्ट सिस्टमिक रिव्यू का ऐसे लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं आप। उसमें हेडिंग्स आपकी थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी। कुछ जर्नल्स जो होते हैं वो डिमांड करते हैं कि अच्छा ऐसे लिख के दें, कुछ करते हैं कि वैसे लिख के दें, और बस आपको मॉडिफाई करना होता है। बेसिक चीज़ बताने वाली ये थी कि यहाँ पर आपके नंबर्स यूज़ हुए हुए हैं, और जो सिस्टमिक रिव्यू है उसमें इतने नंबर्स यूज़ नहीं हुए हुए, ठीक है? अगेन इंट्रोडक्शन सेम वही चीज़ है, एग्जैक्ट सेम वही चीज़ है, नथिंग डिफरेंट, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, एंड देन मेथोडोलॉजी, ठीक है? मेथोडोलॉजी में आपने उसी तरीके से स्टार स्ट्रैटेजी, ये देखिए यहाँ पे प्रिज्मा मेंशन हुआ हुआ है। प्रिज्मा को आपने साइट बी सॉरी प्रिज्मा को आपने साइट बी करना होता है, ठीक है? साइट प्रिज्मा को साइट करना नहीं भूलना। प्रिज्मा को आपने साइट कर दिया, ठीक है? आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया था, बता दिया था। स्टडी सिलेक्शन आपने किस तरीके से की वो भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है? डाटा एक्सट्रैक्शन, क्वालिटी असेसमेंट सेम थिंग, आउटकम, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सेम थिंग। अब हम आ जाते हैं रिजल्ट्स के ऊपर, ठीक है? आपने दैट्स लाइक द सेम थिंग, सर्च रिजल्ट्स आपके थे, ये हमने प्रिज्मा दोबारा से बता दिया हमने आपने इसमें रिव्यू में, और आपने जो है ना रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग द स्टडी देयर वर 5, ओके? तो उसके बाद आपने स्टडी की कैरेक्टरिस्टिक, द सेम थिंग आपके पास होता है कि मैंने आपको कहा था कि हर स्टडी डिफरेंट होती है, तो उसके बेस एंड कैरेक्टरिस्टिक तो होंगी। अभी आप देख रहे होंगे कि ये सेम है, सिस्टमिक रिव्यू में भी यही चल रहा था। अभी तक ये सब कुछ सेम होता आ रहा है, सेम, दैट सेम, ठीक है? ये भी सेम है, ये आपका रिस्क ऑफ बायस है, ये हमने न्यू कासल टॉवर स्केल से किया है, और ये डिफरेंट आपके पास जो होते हैं वो उसे आप जो रिस्क ऑफ बायस होता है असेसमेंट कर सकते हैं। रिस्क ऑफ बायस का वंस अगेन आई विल टेल यू, हम इसलिए करते हैं कि आपकी कुछ स्टडीज़ होती हैं जो आपके रिजल्ट्स को ख़राब कर सकती हैं, और कुछ स्टडीज़ होती हैं जो स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो आपके रिजल्ट्स को बहुत अच्छा कर सकती हैं। तो हमें रिस्क ऑफ बायस असेस करना होता है, बताना होता है कि हमने किस तरीके की यूज़ की, ठीक है? अब ये हमारा रिजल्ट था हीमाटोमा एक्सपेंशन। अगेन यू कैन सी हमारे पास पी वैल्यूज़ हैं, हमारे पास आई स्क्वायर की वैल्यू है, और हमारे पास ये 292 में से 298 पेशेंट, मतलब डिफरेंट, यू कैन सी डिफरेंट आपके पास जो है न्यूमेरिकल्स आर बेसिकली अवेलेबल, ठीक है? सब ग्रुप एनालिसिस आपके पास हो गया। अब हम आते हैं असल चीज़ के ऊपर। यू सी राइट हियर, दिस इज़ अ फॉरेस्ट प्लॉट। अब आपको पीछे तक हमने सारा कुछ जो भी था वो सारा कुछ सिस्टमिक रिव्यू की तरह ही था। दिस इज़ द फॉरेस्ट प्लॉट जो कि आपके मेटा एनालिसिस में होता है। अब अगर आप इफ़ यू लुक एट द फॉरेस्ट प्लॉट अब किस तरीके से बनता है? अब वो होता है कि रेवमैन का आपका पूरा लेक्चर है, ठीक है? एंड पे, और हम आपको पूरा सिखाएँगे कि उसमें आपने डाटा एंटर करना होता है, उसका एनालिसिस रन करते हैं, और फिर आपका जो है वो पूरा आपका ग्राफ इस तरीके से बन के आ जाता है, आपको खुद नहीं बनाना पड़ता, आपको खुद बन के आ जाता है, ठीक है? तो आपने इसको देख के परेशान नहीं होना। हमने बहुत एक्सपर्ट हाई क्वालिटी के जो है वो हमने अपने स्पीकर्स बुलाए हुए हैं, एंड देन दे आर गोइंग टू मेक इट ईज़ी पीज़ी फॉर यू। अच्छा, अब आप इसको देखें तो दिस इज़ अ फॉरेस्ट प्लॉट में आपने क्या देखा कि एक तो उन्होंने जो हमने अच्छा सॉरी मैं आपको शुरू में बताती हूँ हमारा रिसर्च किस बारे में है। हमारी रिसर्च है सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ डेस्मोप्रेसिन, अगेन अ ड्रग डेस्मोप्रेसिन इन प्रिवेंटिंग हीमाटोमा एक्सपेंशन इन इंट्राक्रैनियल हेमरेज एसोसिएटेड विद एंटीप्लेटल ड्रग्स यूज़, ठीक है? हमने यूज़ की DDAV DDAVP, ठीक है? डेस्मोप्रेसिन। अब वी आर गोइंग टू कम बैक टू ये जो हमारा फॉरेस्ट प्लॉट है, ये आ गया। ओके, अब आप देख सकते हैं कि एक फॉरेस्ट प्लॉट जो है ना, इट कैन टर्न यू हर चीज़, इट कैन लाइक टेल यू हर चीज़ अबाउट योर रिसर्च। अब यहाँ पे उसने DDAVP, ठीक है, उसको इवेंट्स टोटल उसको कर दिया, कंट्रोल साथ में आपको बता दिया, उसने उसका रिस्क रेशियो बता दिया, कॉन्फिडेंस इंटरवल बता दिया, आपको उसकी पी वैल्यू बता दी, और आपका उसका आई स्क्वायर वैल्यू भी बता दी, ठीक है? यानी इसको देखते हुए आपको यहीं पे अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी जो ड्रग है या मेरी जो रिसर्च है, वो मुझे क्या बता रही है कि वाक़ई में हीमाटोमा का एक्सपेंशन जो है वो कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा,
ठीक है। अब मैं थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन करूँगी कि ये आपके पास जो होती हैं, दीज़ आर बेसिकली ये डॉट्स मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। ये आपके पास जो है वो लाइन होती है, अगर इस लाइन के ऊपर आपको ये जो आपके रिज़ल्ट्स हैं वो लाई कर देते हैं, इसका मतलब है आपके रिज़ल्ट्स इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। हल्का-सा टच भी होता है तो भी आपका जो है वो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होता। दिस इज़ द ओनली थिंग। अभी मैं आपको बताऊँगी मज़े की चीज़ कि ये इम्पोर्टेंट क्यों होती है, ठीक है। अभी सिर्फ़ एक आपको नज़र आ रहा होगा जो कि लाइन को टच नहीं कर रही, बाकी सब कुछ टच कर रही है। बे इवन दिस वन हल्का-सा हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी दिस इज़ टचिंग द लाइन, सो ये रिजल्ट्स आपके सिग्निफिकेंट नहीं आ रहे। दिस वन इज़ टेलिंग मी कि हाँ, मे बी हो सकता है, ठीक है। ये फेल्डमैन की स्टडी है, ये आपकी स्टडीज़ लिखी होती हैं, फेल्डमैन है, समर्स है और ये सारा, ठीक है। अब हम जाते हैं नीचे, इतना मैं अभी इसको डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूँगी वरना आप और कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। अच्छा, अब हम जाते हैं, अगेन हम रिजल्ट्स पे ही चल रहे थे, थ्रोम्बोटिक इवेंट्स है, फिगर 4 आपने देख ली, अगेन देयर इज़ अनदर थ्रोम्बोटिक में हमने चेक कर लिया। फिर न्यूरोलॉजिकल आउटकम है, सब ग्रुप एनालिसिस किया है आपने दोबारा से अगेन, ठीक है। अब आप ये देखें, ये हमने सब ग्रुप एनालिसिस किया और आपको नज़र आ रहा होगा एवरी लाइन, एवरीथिंग इज़ लाइक टचिंग दिस लाइन। ऊपर जो ये है ना, ये जो स्टडी थी, ये फेल्डमैन वाली, उसने कहा हो सकता है। बाकी एवरीथिंग इज़ कॉन्ट्राडिक्टिंग द स्टेटमेंट। ये होता है असल मज़े की चीज़ इसमें कि एक स्टडी आपको कहती है नहीं मे बी हो सकता है, लेकिन द रेस्ट ऑफ द स्टडीज दे लाइक नो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए से हमें मेटा एनालिसिस टेक्स द सुपीरियॉरिटी। मेटा एनालिसिस आपको बताती है कि अगर एक स्टडी आपको पढ़ी आपने और आपने कहा कि अच्छा आपको सिर्फ लेकर जा रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसी काम करे, ठीक है। मेटा एनालिसिस आपको बताती है कि नहीं, ये ड्रग अगर एक बंदा कह रहा है तो हम बाकी जितने भी हैं वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगेन आपने इसको डिस्कशन जो है वो आपने उसके अगेन वैसे ही लिख दी, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है इसका कंक्लूजन लिख दिया और आपने ऑथराइजेशंस वगैरह, आपने कॉन्ट्रिब्यूशंस, जो ये कुछ आपकी कंपल्सरी थिंग्स होती हैं, मैं आपको बताऊंगी कि ये चेकलिस्ट कैसे करते हैं और ये आपने सब जो है वो मेंशन करनी होती हैं और फिर आपके एंड पे रेफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। मैं एक बार दोबारा आपको रिव्यू करके दिखा देती हूँ पूरा ऊपर से, ठीक है। जो आपका सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट होता है मेटा एनालिसिस में, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको लिखना सिखाया है। फिर आपका जो है इंट्रोडक्शन, मैंने आपको बताया किस तरह डिफरेंट होता है। मेथड इज़ द मेथोडोलॉजी, सर्च स्ट्रैटेजी आप मेजर करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, स्टडी सिलेक्शन होती है, मैंने आपको बताया किस तरीके से होती है। डाटा एक्सट्रैक्शन हम करते हैं, आउटकम्स हम देखते हैं, ठीक है। फिर आपने रिजल्ट्स कितने आपने रिट्रीव किए, प्रिज्मा हमने बना दिया, प्रिज्मा मैंने आपको दिखा दिया था। स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या थी, बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक मैंने कहा था इट शुड, ये हर उसमें होता है, चाहे वो सिस्टेमिक रिव्यू हो, चाहे वो मेटा एनालिसिस हो, हर चीज़ सेम चल रही है अभी तक, ठीक है। ये आपने रिस्क ऑफ बायस असेस कर लिया और फिर आपने एंड पर आकर ये आ गया कि आपका ये फॉरेस्ट प्लॉट हो गया। फॉरेस्ट प्लॉट इज़ द ओनली द थिंग दैट इज़ ओनली प्रेजेंट इन द मेटा एनालिसिस, ठीक हो गया। अच्छा, ये फॉरेस्ट प्लॉट आ गया और अभी हमारे ये रिजल्ट्स ही चल रहे हैं। फिर आपने डिस्कस कर दिया, अगेन डिस्कशन में आपने उसको कंपेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है। और फिर उसके अलावा आपका ये कंक्लूजन आ जाता है और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, आपको आई होप सो अब तक सब समझ आ गया होगा और अब हम जाते हैं एंड पर। व्हाट वाज देयर इन द एंड, ओके। डिस्कशन कर लिया, ठीक है। फिर आपने कंक्लूजन आपने लिखा, सम आपने सम अप करना होता है 150 वर्ड्स के लिए, ट्रस्ट में किसी के पास टाइम नहीं होता। आपने अगले के लिए आसान करना है कि वो आपकी डिस्कशन को पढ़े, उसको पता आ जाए, समझ आ जाए कि अच्छा अंदर क्या हो रहा है, तो आपने उसको बता देना होता है और उसके बाद दैट वाज अ कंक्लूजन। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अगर गूगल पर सर्च करें तो आपके पास आएगा प्रिज्मा चेकलिस्ट, ठीक है। अगेन प्रिज्मा चेकलिस्ट, और प्रिज्मा चेकलिस्ट अगेन आपको वर्ड पर अवेलेबल होती है, ठीक है। और ये मैंने डाउनलोड की हुई थी ऑलरेडी। प्रिज्मा चेकलिस्ट इज गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू इंक्लूड इन योर स्टडी। आपने अपना आर्टिकल ए टू जी कैसे लिखना है, आप इस जो है ना टाइटल है कि नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट आपने कैसे लिखा है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का भी इन्होंने इवन आपने चेकलिस्ट दी हुई है, ठीक है। रैशनल आपने लिखा है, ऑब्जेक्टिव आपने लिखे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंफॉर्मेशन। सो इन ऑर्डर टू राइट एन एक्सीलेंट मैन्युस्क्रिप्ट, इस अगर आप इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है एक्सीलेंट। और जैसे मैंने आपको बताया कि यू हैव टू मेक इट इजी फॉर द अदर पर्सन टू, ये ना हो कि ऊपर आपने कुछ और लिखा है, बाद में आपने कुछ और लिखा है। तो आपको एक जिसे कहते हैं स्टेप बाय स्टेप उसको लेकर जाना होता है
और आपने उनको बताना होता है कि अच्छा आपकी स्टडी में एक्चुअली क्या हो रहा है, कि हमने पहले क्या किया, बाद में क्या किया। तो आपने बेसिकली इस पूरी चीज़ को, ये देखें, ये जो रिजल्ट्स वाला पार्ट है, फिर डिस्कशन है, अदर इन्फॉर्मेशन है, या आपने देखें रजिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल है, सपोर्ट आई जस्ट सेड कि जो आपने कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं, ये सारे इधर हैं। आप एक एक्सेलेंट मैन्युस्क्रिप्ट के लिए, इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो दीज ऑल गाइडलाइंस, इंशाल्लाह आपके मैन्युस्क्रिप्ट जो होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। और आई गेस और कोई चीज़ मेंशन करने वाली नहीं रहती इन माय, मैं एक बार चेक कर लूँ, डबल चेक, आई गेस, यप, ओके, आई गेस यप, अच्छा ठीक है। ये वो उसका फॉन्ट होता है, ये आपका पबमेड का, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। पबमेड में आपके पब्लिकेशन डेट आप 5 ईयर्स की लगा सकते हैं, 1 ईयर की लगा सकते हैं, ठीक है, आपके सारे फ़िल्टर्स हैं, ठीक है। आपका फुल टेक्स्ट अवेलेबल है, सिर्फ़ एब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल है, वो आपने देखना होता है, ठीक है। आपने ये जो पार्ट है ना, ये बहुत मुझे पसंद है, इसमें आपको सिस्टमिक रिव्यू आपने देखना है, वो आ जाएगा। इस फ़िल्टर को हमने हटाया और मैंने इधर लगा दिया फ़िल्टर लेट्स सपोज़ मेटा एनालिसिस का, ठीक है। तो हमें 5 रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। और 5 रिज़ल्ट्स में भी हमें ये पता चल जाता है कि अगर हम इस साइड वाले बॉक्स को देखें, 2023 में 2 हुई थी, 2024 में 2 हुई थी और 25 में 1 हुई थी, ठीक है। अब कुछ अ, अभी हमारा जो लेक्चर है ऑन द बेसिक्स इट एंड्स हियर, ठीक है। अभी कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी बताऊँगी कि कितना-कितना आपने जो है ना वो इंक्लूड करना होता है, ठीक है। अब अगर तो सिस्टमिक रिव्यू है, सिस्टमिक रिव्यू का फ़ायदा और मेटा एनालिसिस ये होता है कि जो सिस्टमिक रिव्यू है ना, उसमें आप कोई भी स्टडी का जो स्टडी जो होता है, एनी काइंड ऑफ स्टडी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। डज़न्ट डिपेंड वो क्रॉस सेक्शनल है, कोहॉर्ट है, केस कंट्रोल है, आरसीटी है, ठीक है। मेटा एनालिसिस में आपने कोशिश करनी होती है कि आप वो इंक्लूड करें जिनके जो आउटकम्स होते हैं वो पूलेबल होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब आप सिस्टमिक रिव्यू के लिए बेहतर होता है कि आपके पास जो है वो 3 या 4 द मोर द बेटर, बट ये 3 या 4 आर्टिकल्स के ऊपर आप अपना सिस्टमिक रिव्यू रन कर सकते हैं। कुछ लोग 2 पर भी कर देते हैं, बट आई वोंट रिकमेंड दैट, ठीक है। और जो मेटा एनालिसिस होता है, उसका बेसिकली आपको 3 या 3 से ज़्यादा स्टडीज़ चाहिए होती हैं, जिनमें आपके पूलेबल आउटकम्स हो। अब पूलेबल आउटकम्स का मतलब ये है कि अगर मैं चाहती हूँ कि लेट्स सपोज के पुलेबल आउटकम, जैसे मैंने देखना है कि ज़ेविजिपिन आपके नॉइज़िया को कितना कम करता है, ठीक है। अब मैंने बाकी स्टडीज़ में देखना है कि उनमें वो वैल्यूज़ प्रेज़ेंट हैं, जो मैं अपने रिव्यू मैनेजर में डाल के उस पे एनालिसिस रन करके फॉरेस्ट प्लॉट बना सकूँ, ठीक है। तो आपने हमेशा अपनी स्टडीज़ में देखना होता है कि उसमें पुलेबल आउटकम्स हैं या नहीं है। और उसके अलावा ये कि अगर आप बिल्कुल अभी न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेटा एनालिसिस, तो आपको तकरीबन 1 महीना लग सकता है, ठीक है। बिल्कुल अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें महीना लग सकता है, सिस्टमिक रिव्यू हो जाता है 1 वीक 2 वीक्स तक हो जाता है। उसके अलावा आई डोंट थिंक आई हैव मिस्ड एनी पॉइंट अबाउट द मेटा एनालिसिस एंड ऑल। या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर being with us and being patient. I hope आपको सब जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं अबाउट द होल सिस्टमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस आपको समझ आ गया होगा, आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन आस्क देम राइट नाउ। You can unmute yourself and you can ask your questions, please. That's a great session. I really loved it actually. Like I think having this understanding, you can stop sharing the screen. Maybe now we can see all the panelists. Yes, sir. Okay, I will do that. Um, yeah, so I think it's really insightful session. Even like I learned something. So it's I think you're a great teacher. So with that, I think like few questions I would like to ask, like what are the challenges that you felt as a starter when you started, and like if you have to number it by like top three barriers to start or feel when you are diving into this, and how did you counter it simply? I think the first barrier is research is a very closed community. People like we being in the medical like in the medicine, we don't have time, first of all. And there are like when I started it, because I knew nothing about it, so I have to like ask, "Hey, can you include me in your study, can you include me in your study?" And they will be like, "No, we can't, we don't have." Like I like understand their part, ठीक है, उनके पास time नहीं है,
और हर बंदा आपको नहीं समझा सकता कि बैठ के, क्योंकि दैट्स देयर टाइम इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। एक तो चैलेंज ये होता है कि नोबडी इज़ willing to make you learn it. In my case, I was very fortunate enough. I had my very dear friend. He's going to take a subsequent session. जो है, he was very kind enough to make me learn certain things. He to explain certain things. The second thing is first एक तो ये होगी. Second thing is कि people find it very boring. You people say कि okay, बैठ के अगर आपने 100 आर्टिकल्स को स्क्रीन करना है, that is not something that's going to take like 2 घंटे मेरे से. तो लोगों को वो चीज़ बहुत जो है वो करती है कि लाइक व्हाई शुड आई वेस्ट लाइक 2 आवर्स, आई कैन गो एंड टेक अ वॉक, आई कैन गो एंड वॉच अ मूवी और लाइक दैट. सो बेसिकली आपको उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है. सो इनिशियली दीज आर ऑल थिंग्स यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. ट्रस्ट मी, अभी भी अगर आपने ये सब कुछ देख लिया है ना, और यू आर गोइंग टू लाइक अपने ऊपर ये जब चीज़ें अप्लाई करेंगे, आपको तभी डिफिकल्टीज आएंगी, आपको तभी नहीं होगा. लेकिन वही बात है कि एक बार जब आप कर लेंगे तो आपको जो है वो करना आपको ये करना ज़रूरी होगा. अब मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन इज़ द ईज़िएस्ट पार्ट, ठीक है? लेकिन जब आप इसको पहली बार करने बैठेंगे, आपको 100 आर्टिकल्स बैठ के पढ़ने हैं और उसमें से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है कि ओह अच्छा, दिस इज़ वी शुड इंक्लूड दिस हियर, और उसको रेफरेंस करना होता है, एंड दिस इज़ अ वेरी मेस्ड अप थिंग. अगर आपने वो नहीं किया होगा, एक बार हाथ से नहीं गुज़ारा होगा, आपसे नहीं होगा. सो मेक श्योर जो भी आप करें वो उसको जो है वो हर चीज़ को करें. और टाइम, ऑफ कोर्स दिस इज़ अ टाइम टेकिंग थिंग. दिस इज़ अ पीपल फाइंड इट बोरिंग. जो है पीपल फाइंड इट इवन डिफिकल्ट. दिस इज़ नॉट डिफिकल्ट. अभी मैंने आपको दिखाया, इट्स वाज़ इट डिफिकल्ट? आई डोंट थिंक सो इट वाज़ दैट डिफिकल्ट. So the people find it difficult, people find it challenging, and research being a very closed community, you sometimes find it very hard to approach people. People reject you a lot. People say we don't have time to make you learn. That is an understanding part at their part, but again जो है negative part आपके ऊपर भी होता है. So that's the thing, the certain challenges I followed, but eventually I started my journey 1.5 year ago, and it's been 1.5 year, and this is like my first time I've been invited as a speaker for is, despite I have like a medal, I have like multiple positions in like multiple competitions. So I think it takes time. और again I said कि no matter आपने कहाँ पर शुरू किया हो, the thing that matter is कि आपने at least शुरू किया है. So that's I think there was answers. That's a great point. I think to add to that, to the boring stuff, I would say choose the interesting topic. I will be biased because I love cardiology. So in cardiology, I may love HCM or maybe pericarditis or something that sparks me and makes me curious. Like there's always an ambiguity in the treatment of this section when it comes to recurrent pericarditis or something. There is class 2, like I will give you a secret. It's like anything which has class 2b recommendation, it's a weak evidence. That's there when you can try to find the papers. There must, everyone is top of like meta-analysis. Whenever on ACC and AHA a trial is released, people even on the day of trial they try to publish it. People like they have like a teams behind them, like trialist and all that. They even publish on the next day meta-analysis, crazy stuff. But there's nothing, like you Yes, don't need to true. worry about that. So I think to get to the boring part is like this session is recorded. Hopefully it will be uploaded tomorrow. We'll have to create a separate channel on the YouTube so that you can watch it later and you can go again slowly at your own pace and watch it again second time. If you have to watch third time, watch it. It's fine. Then practice it. As you're watching it, try to search. That is the most important thing. Listening to the lecture, it's great passive learning, but the most important part is doing it. If you do it, you believe me, you will feel totally different. You'll say this is interesting, but find the interesting topic. Either rather whatever the topic you like, does not matter. It does not need to be cardiology. It can be anything you love about, even if it's the research is done. Okay, just pass through the process. That will give you a strength that yes, this I understand. This is the basic stuff. If any one of you can do step one, I am 100% sure you can do learn this stuff. So I'll stop there before we can have more questions. So
Maybe I think chat box can be used, or you guys can raise the raise your fingers You or guys, something. you guys can unmute yourself. I think you all are able to unmute yourself, and then you can ask question. Can you guys do that? Anybody? Hello, am I Ji. audible? Yes. Gigi, you are audible. Gigi. Okay, so I have a question, and I might be getting a little ahead of myself, but I'm kind of confused about the inclusion criteria that you mentioned. जैसे like systematic reviews में you told कि it's a little lax, लेकिन meta-analysis में it has to be strict. And another question is कि अगर like can you elaborate more on the inclusion criteria? And उसके अलावा another question is कि for example meta-analysis में we are considering clinical trials. तो कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जो मल्टीपल फेजेस में होते हैं और उनका डेटा भी मल्टीपल फेजेस में पब्लिश्ड होता है जैसे फेज 1 फेज 2 फेज 3. So in that meta-analysis, do we include the latest data or do we include all three of them? And if we pool all three of them, तो उसमें duplication नहीं हो जाती patients की? Like I'm confused about that. Okay. So about your first question was on conclusion, right? My first question was about inclusion criteria and like can you elaborate a little more on that कि कैसी studies हम include करते हैं systematic reviews में and meta-analysis में? Acha. So inclusion criteria about a systemic review, I told you कि one of the good thing about the in जो होता है systemic review में, you can add any article, ठीक है, that is of your interest. It doesn't depend कि आपका study जो है वो study design कैसा है, cross sectional है, case control है. अगर तो आपके जो टॉपिक है, आपके जो आउटकम्स हैं, मेनली आउटकम्स, ठीक है, हमारे केस में हम ज़विजेपिन को देख रहे थे, हमने उसकी सेफ्टी और एफिकेसी को देखी थी. You are going to include all those studies that are going to either are basically mentioning about the safety or efficacy. So in that way your आपका जो होता है वो आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया बनता है आपके उसको इंक्लूड करने के लिए सिस्टमिक टीमों में. While in meta analysis I explained it कि anything that you can pool any numeric values, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज बिंग सेट, जैसे कि आपके पास डिफरेंट आपके पास स्टडीज होती हैं जिसमें आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज अवेलेबल होती हैं. सो इफ यू आर एबल टू एक्सट्रैक्ट दूस न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है, एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यूज अपने टेबल के अंदर, देन यू कैन बेसिकली परफॉर्म द जो होता है उसके ऊपर अपना मेटा एनालिसिस कर सकते हैं. सो जो बिल्कुल जो आपके पास इंक्लूजन क्राइटेरिया होगा कि आपने किस तरीके से इसको जो है वो इंक्लूड करना है या किस तरीके से इनको एक्सक्लूड करना है, आई जस्ट सेड इट डिपेंड्स अपॉन योर आउटकम्स, इट डिपेंड्स अपॉन ऑन द मेटा एनालिसिस, कैन यू पूल इट, कैन यू लाइक आप कर सकते हैं या नहीं, और इन केस ऑफ सिस्टमिक रिव्यू के डज दैट research revolves around the area of your outcomes or the area of your interest. Okay, so that was your first question. Second question was सेकंड क्वेश्चन वाज अबाउट जैसे अगर मेटा में हम क्लिनिकल ट्रायल्स को कंसिडर कर रहे हैं तो कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स के मल्टीपल फेजेस होते हैं. So do we include all, for example, a clinical trial has 3 phases. So do we okay. include all of them or do we include the latest one? ओके. सो अब जो मैंने मेटा एनालिसिस का आपको बताया कि मेटा एनालिसिस में आपने कहा क्लिनिकल ट्रायल्स यस पीपल इंक्लूड करते हैं, बट आई विल अगेन रिपीट any study design that you can pool your outcome from can be included in your meta analysis. जरूरी नहीं है कि वो आपका क्लिनिकल ट्रायल भी होगा. अब आपके पास फेज 1 फेज 2 और फेज 3 आपने जो क्लिनिकल ट्रायल्स की जो है वो बात की, आई थिंक फेज 1 फेज जो लेटेस्ट चल रहा होता है फेज 4, यू कैन जो है वो इंक्लूड आप दैट. लेकिन आई विल रिकमेंड कि यू शुड लेट दैट होल जो प्रोसेस हो रहा है, let that conclude, let them publish the whole thing, the phase 1 phase 2 phase 4. Once they have like completed it the whole thing, then you can then just go ahead and include it in your study. I'll recommend that. लेकिन क्योंकि फेज 1 फेज 2 फिर वो उसमें आपको थोड़ा मसला आ जाता है कि लाइक फिर ऑब्वियसली कुछ उसमें से पेशेंट्स भी निकल जाते हैं, कुछ जो है क्या नाम है उनको बीच में और भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. सो आई रिकमेंड कि वंस द होल जो आपका फेज है वो डन, दैट इज उन्होंने अपना जो है वो प्रॉपर दे दिया कि ओके वी आर डन विद दिस थिंग, सो जस्ट गो अहेड एंड इंक्लूड दैट. व्हाट वाज योर लास्ट क्वेश्चन? I'm sorry, I couldn't hear your question. What was your last question? नहीं बस ये दो थे. Thank you so much.
Okay, okay. I hope I learn Ukari. You can ask me in my DM also if you are, confused about something. Okay, anybody else? Okay. I guess nobody has any more questions, I guess. Am I right? Okay, everybody, if you have any questions, you can ask in the group. I am there. You can reach me directly. Okay, and I will be very happy to collaborate with anyone of you if you want to, do the researches with me. I'm open to that too. And I hope so. You will all have learned something from today's session. In case you are confused about anything, do ask in the group. And inshallah, अभी आपको चीज़ें बहुत सुपरफिशियल लेवल पर बताई गई हैं. We will dive deeply into all of the stuff in a subsequent session. Of course हम आपको पहले दिन पे इतना ओवरवेलम नहीं कर सकते कि आपको लगे कि पता नहीं क्या चीज़ है, ठीक है? और जो जितनी मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर बताया था, और इवेंचुअली हम उस स्ट्रक्चर को ऑल उसके पार्ट्स करते करते आपको हम उसको बताते जाएंगे कि इवन द एनालिसिस पार्ट एंड इवन द how to basically write a good manuscript too. So we are going to tell you all about it. I hope you all will have learned something good. And with that, I guess today's session is included. Thank you so much for joining, and thank you so much for your time. You can all leave now. Allah Hafiz. Great. Love this.